हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम ट्रांसपोर्टेशन के यूनिट 3 ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रैफिक इंजीनियरिंग? फर्स्टली, आई टोल्ड यू ट्रैफिक इंजीनियरिंग इज दैट phase of engineering in which we deals with the planning and traffic characteristic. The traffic characteristic may be two types. Number one, road user characteristic, and second one, vehicular characteristic. Under a road user characteristic, we can consider the following things such as environmental characteristic, number 2 physical characteristic, or number 3 psychological characteristic. These are the three parameters which are considered under a road user characteristic. In other words, second thing is that vehicular characteristic. Vehicular characteristic may be static, dynamic, and third one braking. These are the three characteristics which are considered for any vehicle. Like static, that means vehicle in stop position. Dynamic, that means vehicle in motion. Braking, that means vehicle in braking condition. And now, what do you mean by traffic studies? Under a traffic study, we can consider the traffic volume, speed study, and traffic counting. Under a traffic volume is the number of vehicle crossing a section of road per unit time. There are many uses of traffic volume, such as, students, this is a diagram for traffic volume counting. Let us consider a intersection that shows the inflow and outflow of vehicle. स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये जो एक इंटरसेक्शन डिज़ाइन किया गया है, इसमें आपको दोनों मतलब चारों साइड से दो दो इनफ्लो और आउटफ्लो दिखाई दे रहे हैं। जो आपका सिंगल ब्लॉक है वो आपका पर्टिकुलर साइड से आपको इनफ्लो को शो कर रहा है एट ए इंटरसेक्शन, एंड जो 3 ब्लॉक है ये शो कर रहा है आपका आउटफ्लो को। चारों साइड से देखिए, इनफ्लो एंड आउटफ्लो, इनफ्लो एंड आउटफ्लो, इनफ्लो एंड आउटफ्लो, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो विच शोज इन दिस डायग्राम। स्टूडेंट्स, दिस इज द सम ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो. द इनफ्लो एंड आउटफ्लो is equal, that is 1950. It means it is a ideal condition for traffic volume. That means there is no having jam conditions. Clear? Second thing, speed study. Speed study maybe depends on the geometric design of parameter under a traffic conditions, time, place, environmental factor. Various types of speed are: number 1 spot speed, number 2 speed delay study, number 3 origin and destination study, और number 4 traffic flow characteristic, और number 5 traffic capacity. Number 1, spot speed. Spot speed is defined as a instant speed of any vehicle. स्पॉट, दैट मीन्स किसी भी व्हीकल की इंस्टेंट टाइम में इंस्टेंट स्पीड क्या कहलाएगी? स्पॉट स्पीड कहलाएगी. सेकेंड थिंग, स्पीड डिले स्टडी. स्पीड डिले स्टडी, द डिले स्टडी gives the running speed, overall speed, or fluctuating speed, and the delay between two stations, that is origin and destination. Clear? Number 3, origin and destination study. देखिए, origin and destination study important part है किसी भी ट्रैवलिंग का. Let us
हम कोई भी अगर जर्नी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें ऑरिजिन एंड डेस्टिनेशन क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जो भी इंटरमीडिएट्स ट्रैफिक हैं, वॉल्यूम है, ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम कंसिडर करते हैं किसके लिए? ऑरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी के लिए। नंबर 1, टू प्लान द शेड्यूल ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रैवल ट्रांसपोर्टेशन ट्रिप, ऑरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी इज़ मस्ट। सेकेंड थिंग, डिमांड ऑफ कंज्यूमर, कॉमा, plan a road network and other facilities for vehicular characteristic, origin and destination study is must. According to various application of OND, number 1, to locate expressway and NH or major routes along desired traveling. Second thing, to locate IMD, intermediate stops of public transport. Number 3, to establish design standard for the road along the route. Number 4, to judge the adequacy of existing route. And number 5, for the collection of OND data, some of the following methods are: number 1, home interview method, number 2, license plate method, और number 3, tag on car vehicle method. स्टूडेंट्स, ये जो मेथड हैं, 3 मेथड OND स्टडी के लिए, यहाँ पर आपको इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। होम इंटरव्यू मेथड क्या है? जस्ट लाइक जैसे आपने देखा है पॉपुलेशन सर्वे होता है, उसी तरीके से होम इंटरव्यू मेथड है कि नंबर ऑफ़ हाउसेस कितने हैं और उसके बेसिस पर नंबर ऑफ़ कार्स और नंबर ऑफ़ ऑनरशिप कितना है। सेकेंड थिंग, लाइसेंस प्लेट मेथड, दिस इज़ द ऑफिशियल डाटा विच आर कलेक्टेड बाय द RTO डिपार्टमेंट। थर्ड वन, टैग ऑन कार व्हीकल मेथड, ये वो मेथड है जो एक पर्टिकुलर, जैसे सपोज करिए कोई एग्जांपल मैं क्रिएट कर रहा हूँ कि अगर कोई रिक्शा है तो पर्टिकुलर एक ऑरिजिन एंड डेस्टिनेशन है कि ये रिक्शा आपका नजीबाबाद से बिजनौर चलेगी, या बस है या कार है, ये पर्टिकुलर जो बस है प्राइवेट बस का अगर हम एग्जांपल लें जो IMD के अंदर आता है, इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो उसके लिए हमारा बेसिकली है क्या कि जो ये इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो पर्टिकुलर एक पॉइंट है नजीबाबाद टू बिजनौर, बिजनौर टू नजीबाबाद, तो ये हमारा टैग ऑन कार व्हीकल मेथड है। क्लियर है? तो इसके बाद फिर हम बात करते हैं ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक। इसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक आती हैं, डाइवर्जिंग और मर्जिंग। आप देखिए अगर कोई भी एक मेन रोड है तो उससे आपकी लिंक रोड डाइवर्ट भी हो सकती है और उस पर मेन रोड पर मर्ज भी हो सकती है। देखिए, दिस इज़ द मेन रोड, this and this is the diverging in the left side, so this is called left diverging. And second thing, this is the main road and right diverging known as right diverging. merging, देखिए मेन रोड और ये रोड आकर उस पर मिली है लेफ़्ट साइड से, तो लेफ़्ट मर्जिंग और ये राइट मर्जिंग। क्लियर है? फिर बात आती है ट्रैफिक कैपेसिटी कि ट्रैफिक कैपेसिटी अपने आप में कुछ नहीं है। ट्रैफिक कैपेसिटी जो डिपेंड करता है सर, जैसे हमने ट्रैफिक वॉल्यूम को स्टडी किया अभी, आपने देखा है कि एक पर्टिकुलर प्लेस पर एट इंटरसेक्शन नंबर ऑफ़ व्हीकल्स पर यूनिट टाइम जितना इनफ्लो होगा उतना ही आउटफ्लो होगा, तो आइडियल कंडीशन होगी। अगर इनफ्लो आपका ज़्यादा है, आउटफ्लो कम है, तो हैविंग जाम्स कंडीशन होंगी। तो ये मेन चीज़ क्या है, जो ट्रैफिक कैपेसिटी है कि पर्टिकुलर पॉइंट पर कि नंबर ऑफ़ व्हीकल्स एक यूनिट टाइम में इतना एंटर हो सकते हैं और इतना ही आउटफ्लो हो सकता है। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रैफिक साइंस।